Good evening. We are back on the time for the session. And let's say hi to everybody. So, after yesterday's session of introduction towards file separation, things to avoid, and prevention of file separation, today we have a better half of the session in which I'll be telling you the techniques, a basic technique to bypass a file or manage a file, or in few fortunate cases, retrieval of the file, guys. Okay, I can see the comment box going great. Okay, so I'll start the session. Welcome you all. Dr. Nitin Shishodia live again. It's around 10 o'clock. I think 7 minutes before 10. We'll be just starting the session. Yeah. So, आज हम कल हमने ओ नो मोमेंट के बारे में पढ़ा फाइल सेपरेशन के, जो इज कंसिडर्ड एज अ or no moment for a dentist, because nobody wants file to be separated in the canal, and but it happens frequently. So briefly, jaldi se within 5 to 7 minutes I'll revise yesterday's session so that we can start the ultra powerful session of managing file separation. Okay, तो file separation हमने पढ़ा, when, why, सारा पढ़ा, how to manage we'll do today. The commonest and most frustrating problem you can see, the file is separated. They were the hand files which we use, preventing its management. Radiograph very important first, because any problem or any such mishaps occur if you don't plan the case. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, केस को पहले प्लान करो. रेडियोग्राफ इज द बेस्ट प्लानर. ठीक है, यू कैन टेक रेडियोग्राफ्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस आल्सो विद मीजियल एंगुलेशन और डिस्टल एंगुलेशन. सारा डिफिकल्टी लेवल आपने चेक किया. In few such type of cases, you can see how fine the canal is there. Almost, it appears to be, I'll say, calcified only. A little portion of all chamber we can see here, and the curvature of the roots and the S-shaped curvature. So, why separation occurs? Excessive force, larger number files, skipping file, trying to do vigorous filing. Yes, duplicate. Yeah, that is the very common. Money files are multiply files, duplicate files are getting traded in the market. Avoiding pre-curving. Yeah, we tend to avoid multiple repeated use of single file. Yeah, kinked files, using kinked files. Yeah, very common. And using files with flutes open. So these are things which will have a tendency to file separation. You can see the unfluting also. So skipping files, skipping recapitulation and irrigation, very important. Okay, very important step when you are filing. So use of H files. Yeah, I told yesterday regarding the fine in fine class, you don't have to use the H files. Then we spoke about, yeah, using of a SS file only till 10 or 15 number, followed by flexible files. Skipping of coronal flaring, I told you yesterday. Yeah, coronal flaring is important to straighten up this construction in the cervical third of the pulp. Very important. So, how could we prevent use of smaller files? Yeah, super losing the file, very important. Intermediate files, yeah, you can modify your files. I told you 10 number you will cut 1 millimeter, and 15 number you will cut 1 millimeter. It will become 12 and 17 respectively. And using watch winding motion, the best motion of root canal treatment is watch winding motion, very safe motion, and very finely you can negotiate the canals and reach the patency. So no excess rotation if engages the canal anti-clockwise and pull it out. Very basic techniques. Glide files, copious irrigation, intermediate use of liquidity. I told crown down techniques very important. Use of night tie files 15 and above, and rotary files important to follow the RPM and torque, in which torque you can keep it maximum, RPM a little low. So use of correct sequencing
And I told everybody has a very strong gut feeling. When you have a gut feeling, always change the file. It's better to prevent than to manage, guys. So don't use single files repeatedly in block canals. ये सारी चीजें बहुत basic चीजें हैं. Almost everything we discussed very nicely. Okay, I'm just reviewing the things so that you can catch up with my sessions now. So science of everybody gives a sign before separation. Okay, एक तो किंकिंग फाइल, ओपनिंग ऑफ द फाइल फ्रूट, ये साइन ऑफ फाइल है. और गॉड भी देता है एक साइन जब आपको वो एक इनर वॉइस से बोलता है कि रुक जा, चांस ऑफ सेपरेशन इज देयर. तो यू हैव टू लिसन टू अवर गट फीलिंग. या prognosis. Yeah, now it's the session which I'll be starting. I want to see the energy in the Facebook comment box. Are you with me, guys? Yeah, people are there. Great. Stay tuned. Now we are starting with the better half of the session in which we'll be discussing the prognosis. कौन से factors prognosis decide करते हैं, स्पेशली पार्ट ऑफ द कैनाल और स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन. उसका क्या मतलब है? ओके, जैसे कि आपने अभी फोटो देखी, पार्ट ऑफ द कैनाल में बेसिकली इफ इट इज इन द कोरोनल थर्ड, मिडल थर्ड और अपाइकल थर्ड, पहली चीज ये डिटरमाइन करेगी प्रोग्नोसिस. आई टेल यू हाउ. एंड सेकेंड थिंग इज at what stage the file is separated. Okay, whether it was during the initial files, जैसे आपने 10 number files है, you were just going for the patency and then the file separated, or during the intermediate stage like 15-20 नंबर पे आप 20-25 नंबर पे हैंड फाइलिंग कर रहे हो तब सेपरेट हो गया, या फिर लास्ट स्टेज पे जब आप वाइटर फाइल्स यूज कर रहे हो. तो देज ऑल फैक्टर्स हैज टू बी कंसिडर्ड. तो कभी भी फाइल सेपरेट होता है तो ये सारे फैक्टर्स आपको एक आइडिया देंगे कि दांत का टूथ का प्रोग्नोसिस कैसा होगा और आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो अगर प्रोग्नोसिस पुअर होने के चांसेस हैं तो. ओके गाइस, तो ये सारी चीजें प्रोग्नोसिस डिटरमाइन करता है. जैसे जैसे सक्सेसिव स्लाइड्स आएंगी आई विल बी टेलिंग यू द हाउ द प्रोग्नोसिस मैटर्स. ठीक है, तो पार्ट ऑफ द कैनाल यू केम टू नो. और हाँ, अपाइकल के साथ पेरियपाइकल में भी फाइल चले जाता है कभी कभी. ठीक है, I'll show you a radiograph. Stage of canal preparation and initial mid after debridement I explained. So always remember, separated file is never a problem. It's the inability to do the complete debridement, that is from the orifice to the apex, or I'll say chamber to the apex. अगर हम debride नहीं कर पाते वो failure cause करेगा. कभी भी separation of file will not cause a problem. So, poor prognosis in cases, yes, where the necrotic pulps are there and the debridement was not inadequate. Yeah, it was not adequate basically. Especially files separated in the curved apical third during the initial filings. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बेसिकली बता रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आपकी जो बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही और फाइल सेपरेट होगी और कैनाल में पल्प नेक्रोटिक था, मतलब बैक्टीरियाज वर वेरी हाई और देयर वाज अ पेरिपाइकल पैथोलॉजी. तो मतलब इन केसेस में यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल ऑफ filing and irrigation. So if any obstruction occurs due to file separation, तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट डिब्राइडमेंट नहीं होगा तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे. So now very important steps to consider before file retrieval. अब चलो, हमने डिस्कस करा अवॉइड कैसे करेंगे फाइल सेपरेशन, हमने डिस्कस करा क्या कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन मैनेजमेंट, फिर हमने प्रोग्नोसिस के बारे में पढ़ा, फिर ये भी पढ़ा कि कहाँ कहाँ सेपरेट हो सकती है, कौन से टाइम पे सेपरेट हो सकती है. मगर ऑलवेज रिमेंबर स्टेप्स टू कंसिडर बिफोर फाइल रिट्रीवल एंड बाईपास. अब समहाउ आपने सारे चीजों का ध्यान रखा या फिर समहाउ यू मिस्ड फ्यू स्टेप्स एंड द फाइल गॉट सेपरेटेड. ठीक है, नाउ जस्ट those people who are practitioners or who have done at least 30-40 root canals, they must have experienced this situation. तो उस टाइम पहला स्टेप क्या है, ओ ओ नो मोमेंट चलेगा आपका, ओ नो हो गया क्योंकि यू हैव सीन द फाइल हैज बीन सेपरेटेड, द फाइल इज स्मॉल और टक आवाज आई थी. अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप द ट्रीटमेंट, टेक अ रेडियोग्राफ. एंड very important, after taking a radiograph
See, for example, you took a radiograph, you can see a large, I guess 20-25 number file separated. तो पहली चीज तो पता चली आपको फाइल कहाँ सेपरेट हुई है. अपाइकल पे है, मिडल में. ये तो अपाइकल मिडल दोनों कवर कर रहा है. तो ऐसा भी होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है. पर रेडियोग्राफी आपको बता देगा फाइल को आप मैनेज कर सकते हो, या फाइल को आप बाईपास कर सकते हो, या फिर फाइल को आप रिट्रीव भी कर सकते हो. तो रिट्रीवल में जब मैं जाऊंगा, इट विल बी मोर ऑफ अ रूटीन डेंटल प्रैक्टिस में रिट्रीवल कैसे हो सकता है, अगर हो सकता है तो. ठीक है. और आई ऑलवेज फोकस ऑन बाईपासिंग. ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज टेल कैनाल में फाइल होने से कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो इस रेडियोग्राफ में आपको आइडिया लग गया फाइल सेपरेटेड है. मतलब जस्ट इमेजिन, जस्ट गो इन अ फ्लैशबैक ऑफ योर एंडो केसेस इन विच द फाइल वाज सेपरेटेड. और फॉर द न्यू कमर्स, जस्ट इमेजिन द फाइल हैज बीन सेपरेटेड इनटू योर पेशेंट्स कैनाल. ठीक है. तो क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि कहाँ सेपरेट हुआ है. उसके बाद आप देखोगे थोड़ा बहुत स्पेस है उसके अगल बगल. अब जैसे इस केस में अच्छा खासा दिख रहा है, स्पेस है. पर आप देखोगे जैसे जैसे पाइकल पे जा रहे हैं, स्पेस कम है. तो इनिशियल half of the file will be bypassed very easily. ठीक है. बट द लेटर half you have to take care. तो उसके लिए क्या करना है, आई बी टेलिंग यू. बट उससे पहले जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, रेडियोग्राफ से आपने एनालिसिस कर ली कहाँ सेपरेशन है. और आप जाहिर सी बात है, चाहे रिट्रीव करना है या फिर बाईपास करना है, फर्स्ट स्टेप बाईपासिंग ही है. तो बाईपास करने से पहले ये थोड़ा ना एग्जैजरेटेड व्यू है. इट्स मोर. ठीक है. वी डोंट हैव टू कट दैट मच बिकॉज यू कैन सी द कैनाल इज ऑलरेडी वाइड. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वाइडन द ओरिफाइस फर्स्ट, एंड यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन एक्सेस टुवर्ड्स द फाइल. तो दो चीज करेंगे. फाइल सेपरेट हुआ, आप पहले देखोगे कि फाइल दिख रही है नहीं दिख रही. रेडियोग्राफ पे तो दिख रही है आपको, क्लिनिकली दिख रही है. क्लिनिकली कब दिखेगी, जब ज्यादातर कॉर्नर 1/3 पे होगी. मिडिल 1/3 पे मे भी दिख सकती है इफ इट इज अ सेंट्रल इंसाइजर, बिकॉज कैनाल्स आर वेरी वाइड. और ऐसे केसेस में यू कैन सी इफ यू हैव मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन बोले तो लूप्स है या फिर माइक्रोस्कोप है. लूप्स में थोड़ा बहुत दिख सकता है, पर माइक्रोस्कोप में ज्यादा बेटर दिखता है. पर उसमें भी आपका ये पहला प्रोटोकॉल ये होता है कि यू हैव टू हैव अ स्ट्रेट लाइन ओरिफाइस access to the file. That is, if you can see the file, the chances of managing such cases are very easy, guys. ठीक है. तो अब आपने रेडियोग्राफ लिया, आपने देखा कि हाँ फाइल सेपरेट हो गई, स्पेस देखा, लोकेशन देखी. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे किंकिंग हो रखा है कैनाल्स का. ठीक है. कैनाल्स का मतलब द चैम्बर इज किंग लाइक दिस. तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल प्लेस द फाइल इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. तो व्हेन यू वाइडन दिस, तो what will happen, a straight way you will reach the separated file, and then you can slowly and gradually bypass the file. I'll be telling you the techniques. तो पहला स्टेप ये है. ठीक है गाइस. तो हमने स्ट्रेट लाइन एसेस बना लिया. किससे बनाएंगे, ओके हम बनाएंगे इधर विदर ग्रेट ओरिफाइस ओपनर्स. लॉट ऑफ कंपनीज आर गिविंग वेरी गुड ओरिफाइस ओपनर्स. और फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव अ ओरिफाइस ओपनर, आपके पास जीजी होगा. जीजी की टिप को कट करो. ठीक है. या फिर हाँ, टिप को कट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो जीजी को, या फिर नॉर्मली भी यूज कर सकते हो. बट द स्ट्रोक्स विल ऑलवेज बी इन द आउटर डायरेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब भी आप ओरिफाइस ओपनर जीजी डालोगे कैनाल में, यू विल टेंड टू रिड्यूस द इनर डेंटिन पोर्शन. ओके गाइस, इनर डेंटिन पोर्शन नहीं हटाना, आउटर ज्यादा हटाना है. क्योंकि इनर जितना आप हटाओगे उतना आप लेस डेंटिन, बेसिकली द वेरी थिन डेंटिन वुड बी लेफ्ट बिटवीन द फर्केशन एंड द कैनाल. तो लॉन्ग टर्म में वर्टिकल रूट फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो इसलिए जब भी ये स्ट्रोक्स करोगे, आउटर डायरेक्शन में करोगे, चाहे जीजी हो, चाहे पीजीओ हो, चाहे आपकी ओरिफाइस ओपनर हो. ठीक है. तो आपने ये स्टेप किया, और फाइल पास करने के लिए आपने ओरिफाइस ओपन करने के बाद कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आई टेल, सिंपल, वेरी सिंपल वे. तो नाउ कंसिडरिंग like the case we saw, the file has been separated in apical and middle 1/3. So key to learn file bypassing is to use of new smaller number files. Very very important, and have patience, guys. If you want to practice good endo, start getting more patience, start having more patience. ठीक है. पेशेंस बहुत होना जरूरी है इसमें. पेशेंट तो होना ही जरूरी है, तभी तो आप ट्रीटमेंट करोगे. पर खुद के लिए भी पेशेंस होना जरूरी है.
क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोसीजर कि आप फोर्स लगाओ या आप कुछ भी, मतलब यू कैन डू सम हीरोडोंटिक्स एंड सडनली विद इन 10 minutes द फाइल विल बी bypassed and or retrieved. It's a slow process because very fine movements of filing movements are required without any excessive forces with light वॉच वाइंडिंग मोशन. तो पेशेंस और स्मॉल फाइल्स होना अच्छा जरूरी है. 6, 8, 10 कोई भी फाइल्स हो तो स्ट्रेट टाइम और एसेस बनाया आपने और फाइल से, वेरी गुड. तो टू टाइप्स ऑफ पेशेंट्स विल देयर इन विच यू कैन सी द फाइल, इन विच यू कैन नॉट सी द फाइल्स. इफ यू कैन सी द फाइल्स तो बहुत इजी हो जाएगा. नहीं देख पाओगे तो टेक्टाइल, ठीक है, टेक्टाइल से आपको फील होगा कि आप फाइल के ऊपर आ गए हो. और धीरे धीरे जैसे ही आप फाइल को कैनाल में प्लेस करोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पहले करना होगा आपको, फाइल्स को प्री कर्व करना होगा. फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड विद 8 नंबर फाइल, तो आपने क्या करा, फाइल को प्री कर्व करा पहले. उसके बाद वॉच वाइंडिंग मोशन में, दैट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विद कोपियस इरिगेशन यू विल ट्राई टू फाइंड अ कैच. तो very important, when you start with file bypassing with 8 number file for example, you go in a watch winding motion with copious irrigation and you have to find a catch. The first step of filing to bypass a separated file is to find a catch. कैच मतलब फाइल आपने वॉच वाइंडिंग मोशन में डाला, कहीं कहीं ना कहीं एंगेज हो गया, वो लूज नहीं है. क्योंकि इनिशियली जब आप फाइल डालेंगे इट विल बी लूज, क्योंकि वो सेपरेटेड फाइल के ऊपर है. जैसे वो सेपरेटेड फाइल के साइड में, लैटिस चाहे मीजियल चाहे डिस्टल चाहे बक्कल लिंगुअल साइड में जगह बनाता है, क्योंकि आपने फाइल प्री कर्व कर रखी है. वो ऑलवेज इट ट्राई टू फाइंड अ पाथ, बिकॉज जब फाइल आपकी सेपरेट हुई है, वो एंगेज हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाथ होता है, नहीं तो बनाना पड़ता है टू बाईपास इट. ठीक है, तो वॉच वाइंडिंग मोशन में गए. नाउ कंटिन्यू टिल यू फाइंड द कैच एज आई एम टेलिंग. अब जैसे ही आपको कैच मिलेगा, रुकने का नहीं है, खुश होने का है. और खुश कैसे होने का है, उसको वॉच वाइंडिंग मोशन में हल्का सा करते करते पुल आउट मोशन भी करो. और पुल आउट मोशन जब करोगे तो जब फाइल आप निकालोगे, कोपियस इरिगेशन करो. मतलब एक बार कैच मिल गया तो इरिगेशन 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 फाइलिंग, इरिगेशन 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 फाइलिंग. तो यू कैन सी हाउ स्ट्रेस आई मीन पुटिंग ऑन इरिगेशन, क्योंकि डेब्रिज निकालना जरूरी है. और when it you'll see that when you start filing or you'll start getting a catch, the file will tend to kink and open its flutes. तो क्या करने का है, कुछ नहीं करने का, उस फाइल को डिस्कार्ड करो, टेक अ न्यू फाइल. तो व्हाट विल हैपन, इनिशियली यू विल गेट अ कैच ऑफ 1 to 2 मिलीमीटर. जैसे आप देखोगे आपने फाइल डिस्कार्ड करी, नई फाइल ली, सडनली यू विल हैव 1 or 2 millimeter मोर. That is your working length, which was only 8 to 10 millimeters or 8 millimeters, now has reached to 11 to 12 millimeters. That is, you are going great. ठीक है, you are going great because you are allowing yourself to bypass the file. अब दो तरीके हैं इस लेवल पे जाने के. Either you continue if you are sure enough, or just take a radiograph initially only when you feel that you have bypassed the file. Why it is important? Because to see whether you are bypassing the file or you are creating a new canal with your file. Okay, it's very important. Just see this radiograph. ठीक है, अब जब आपने बाईपास करा, दिस आई शो यू लेटर, अब ये डिस्कस करते हैं. तो आपने क्या हुआ, इनिशियली जब 1-2 मिलीमीटर बाईपास हुआ है, 2 से 3 मिलीमीटर बाईपास हुआ, तो आप एक रेडियोग्राफ ले हुए, जस्ट टू बी श्योर दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन. बिकॉज अगर आपको टेक्टाइल में आइडिया नहीं लग रहा, जस्ट टेक अ रेडियोग्राफ सो दैट यू आर श्योर इनफ दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. नाउ कंटिन्यू. ठीक है, तो जैसे ही फाइल में किंकिंग होगी या फ्लूइड्स का सेपरेशन में, जस्ट चेंज द फाइल. As I always tell in such type of cases, keep extra packets of 8 and 10 number file, okay, and keep on changing the file. 2, 3, 4, 5, n number of files which are getting used, no matter, okay. Matter will be at the end when you are successful in bypassing the file. So for that, just let the file get sacrificed when the files are getting opened or the kinking is there. Okay, very important, because if you don't take care of this, the file will separate again. So initially you are trying to bypass one file, then you have to bypass two files. So it's always to change file and start with a new file. तो अब आपको फर्स्ट पार्ट मिल गया है, मतलब आपको कैच मिल गया. आपकी फाइल जब जैसे जैसे फाइल को बाईपास करिए, आपका जो लेंथ ऑफ फाइल था इनटू द कैनाल भी बढ़ रहा है. तो यू आर गोइंग इन द राइट पाथ एंड यू टुक अ रेडियोग्राफ. द रेडियोग्राफ शोज दैट यू आर फाइन, दैट यू आर गोइंग द राइट पाथ. तो यू शुड बी more confident
confident, and now start bypassing the file till you reach the working length or till you reach the patency of the canal. Okay, once the complete length of the file is bypassed, you feel the grating sound of metal. तो अब जैसे अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें फाइल साइज बहुत बड़ा था, फिर यूजली अगर बड़ा होता है या फिर छोटा भी होता है, व्हेन यू बाईपास द फाइल फुल्ली एंड रीच द एपेक्स समवेयर नियर द एपेक्स, and when you pull out the file you will feel that, and when you will be placing the file, you will feel that grating or clicking sound. Okay, remember the grating clicking sound we read in TMJ. Now we are studying the same grating and clicking sound while bypassing the file. So how the things you connect is very important. तो क्लिकिंग ग्रेटिंग साउंड होगी तब वो मेटल से मेटल कांटेक्ट होगा, तो फ्लूट्स ऑफ योर file which is bypassing the separated file, the contact will be there which will produce this little sound, or you will have more of tactile. Okay, so they are very high chances of file getting separated. Use a new file as I told you. During these procedures always take a radiograph to confirm. अब आपने पहले इनिशियली एक रेडियोग्राफ लिया जब आपने 102 मिलीमीटर जस्ट फाइल को बाईपास करा, आपने देखा डायरेक्शन सही है, अब आपने देखा कि आपका जो वर्किंग लेंथ होना चाहिए या फिर जो है वो आप कंफर्म करोगे रेडियोग्राफ से या पेक्स लोकेटर से, आपने देखा सब कुछ सही है, देन जस्ट कंफर्म अ रेडियोग्राफ, टेक अ रेडियोग्राफ एंड कंफर्म वेदर यू हैव बाईपास द फाइल वेल. हाउ दिस, now you can see how beautifully the separated file in the junction of middle and apical third is bypassed. So, and once you see this radiograph, your file has been bypassed, pat yourself on the back, feel proud of yourself, and say, I'm the best. These three, I'll say, sentence will make you so confident कि next steps would be very easy. ठीक है, क्योंकि एक बार फाइल बाईपास हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल 10 नंबर फाइल से, नेक्स्ट स्टेप थोड़े इजी हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम एज यू इंक्रीज द साइज ऑफ द फाइल, दैट इज 10 से 15 पे आए, 20 पे आए, तो स्टिफनेस ऑफ फाइल्स इंक्रीजेस. तो प्रीकर्व भी आप करके फाइल जब डाल रहे हो कैनाल में, चांसेस आर देयर कि थोड़ी डिफिकल्टी होगी. तो सेम फंडा विच आई टोल्ड यू, ऑलवेज सुपर यूज इट. Use 2 to 3 10 number of files to super use the canal so that the successive files can pass, and always use the same funda of intermediate file. From 10 number go to 12, then 15, then 17. ठीक है, तो I'll say कि 15 number तक ही करो bypass इस stainless steel file से, then you can go with the NIDA files. और one more file I want to introduce to you is मनी की RT files आती हैं. तो they have a basically the properties are intermediate between the NITI and the SS. So these files also you can use. ठीक है, तो now use larger number files till you complete the preparation. If you are using rotary, use a new set of files. अब दो तरीके, either we are using hand files और rotary. अगर hand files यूज कर रहे हो तो सक्सेसफुली आप hand file से पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे जिस भी टेक्निक से आप यूज कर रहे हो. And if you're using a rotary file, always try to use a new set of rotary files, because already आप pre-used rotary file यूज करोगे, वो फाइल से फाइल में कॉन्टैक्ट होगी और उस पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, स्ट्रेस डेवलप होंगे, तो टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन उसकी और हाई हो जाएगी, बिकॉज वी डोंट वांट अनदर फाइल टू गेट सेपरेटेड, वी डोंट वांट आवर केस फ्रॉम बैड टू गेट वर्स. ओके गाइस, so I just want to see the chat box, how active you all are. Are you with me, guys? I want a reply in the text box, and I want you to ask if you have any queries. I want to see you guys. Did you got the step by step which I told you, from the catch to a radiograph to bypassing fully, getting the clicking and the grating sound with the file, and followed by taking a radiograph and patting yourself on the back and saying, yes, I did it, I'm the best. Okay, I can see Dr. Pooja is replying hi. Yeah. Hi Dr. Pooja. So, ये है सारी चीजें. So I just want other guys also reply on the box that you are with me, so that I can start with the next level. Yeah, I can see Dr. Neeraj. Okay, thank you Dr. Neeraj. I'll just proceed now. तो अब सबको डाउट नहीं है ना किसी को, बढ़िया. तो now
अब हम क्या करेंगे, लिटरली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन बिकॉज वी हैव क्रॉस द स्ट्रगल और लॉट ऑफ मतलब फटीग इन द हैंड्स और फिंगर्स ऑफ बाईपासिंग द फाइल। ठीक है, तो फाइल को बाईपास कर दिया हमने, इरिगेशन को पीएसटी करा, कैनाल को वाइड भी कर दिया। I'll just like to add one more thing to your armamentarium. I'll like to tell you कि क्योंकि बाईपासिंग ऑफ फाइल बड़ा टायरिंग प्रोसीजर है, या फिर फाइन केनाल्स या ब्लॉक केनाल्स भी बहुत टायरिंग प्रोसीजर है, तो वी हैव अ हैंड पीस कॉल्ड K400. दिस इज अ हैंड पीस which you can use uh, for the hand files. You can put the hand files on this handpiece like a endomotor. It's like a endomotor only, just the head. तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में काम करता है, दैट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इस मोशन लगभग ये वॉच बाइंडिंग की हो गया, तो इससे आपका हार्ड टायर नहीं होगा। दिस इंस्ट्रूमेंट आई शेयर द फोटो टुमारो। सो इस इंस्ट्रूमेंट को जब आप यूज करोगे तो आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के कैनाल में डालना है, जस्ट ऑन द हैंड पीस, एंड इट विल ऑसिलेट। ठीक है, इट विल गो इन द रेसिप्रोकेटिंग मैनर, तो आपका हैंड टायर नहीं होगा इन सच ऑफ केसेस, या फिर ब्लॉक केसेस हो, या फिर जीपी रिट्रीवल, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा टेडियस जॉब लगता है, तो यू कैन यूज दिस हैंड पीस। तो दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन। तो आई हैव दिस हैंड पीस, आई हैव यूज्ड, इट हैज बीन वेरी यूजफुल। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो सारे हैंड फाइल्स के लिए जो आपके आइडल हैंडल साइज है ना, उसमें वो अटैच हो जाता है। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हैंड पीस इज देयर, इट कैन बी अटैच टू अ माइक्रो मोटर। तो आपको सिर्फ हैंड पीस लेना है, सिर्फ माइक्रो मोटर में लगाने का है, सिंपल, कोई एक्स्ट्रा आर्मेमेंटरियम स्पेशली लेने का नहीं है। ठीक है, तो वंस द कैनाल इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, अ स्मूथ पाथ इज रेडी फॉर ऑब्चुरेशन, दैट्स इट। So basically, we are doing BMP and irrigation while file bypassing all the things to have a good obturation. That is, once we clean the canal, we have to fill the canal. ठीक है, तो टेडियस जॉब जब लगे कभी भी, दो तरीके हैं, या फिर डिवाइड द ट्रीटमेंट टू मल्टीपल सेटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और यूज दिस हैंड पीस। ओके, तो या तो ज्यादातर क्वेश्चन ये रहता है कि फाइल बाईपास तो हो गया सर, क्योंकि वी ऑलवेज लव टू लर्न थिंग्स इन विच वी डू समथिंग एक्सेप्शनली फ्रॉम द अदर पीपल। तो वी ऑलवेज लव टू रिट्रीव द फाइल। आई डोंट नो व्हाई वी रेंटर्स हैव अ फीलिंग यार बाईपास तो हो गई, आफ्टर गेटिंग दैट फर्स्ट सेटिस्फैक्शन you have bypassed the file, you want more in life, you want more in dentistry, you want to retrieve the file also guys, है ना। तो सबको लगता है यार काश रिट्रीव ही हो जाए। तो रिट्रीवल पे आई बी जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिट्रीवल। ठीक है, आई वोंट बी टेलिंग इन डिटेल, एंड लॉट ऑफ न्यू आर्मेमेंटेरियम्स आर डेवलपिंग और पहले से भी हैं। तो बिकॉज इन क्लिनिक्स यू डोंट हैव दिस आर्मेमेंटेरियम, ठीक है, तो आई बी मोर फोकसिंग on the things which you have in your clinic, and if possible in few cases you can retrieve your files also। तो अब आपको जैसे आप कॉम्पोजिट करने के बाद स्टेनिंग करते हो क्योंकि वो अच्छा लगता है और यू फील गुड बिकॉज द वर्क विच यू डू इज मोर अप्रिशिएटेड। वेरी सिमिलरली सम पीपल थिंक कि रिट्रीवल के बाद दे फील गुड, their work will be more appreciated। So for them, I'll just explain you guys regarding the retrieval. Now I just want to ask you again whether till this part are you clear? Yeah, I can see everybody answering. Okay, great. तो अब हमने बाईपास कर लिया, हमने एक अच्छा लेवल अचीव कर लिया, और उसके बाद अब हमें लग रहा है थोड़ा और मांगता है, मतलब थोड़ा और चाहिए, थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है बेसिकली। तो कैसे रिट्रीव करोगे? या यू कैन यूज हैंड फाइल्स ऑल्सो। यस, इट इज इम्पॉसिबल। I have been into cases where we have retrieved the file with retrieve files with our simple hand files. तो स्पेशली की फॉर फाइल रिट्रीवल, व्हाट इज द की? वो ऐसा क्या मतलब टेक्निक है, क्या स्टेप है, क्या चीजें हमें फॉलो करनी है? इज विजिबिलिटी ऑफ द फाइल स्पेशली इफ सेपरेटेड इन द कोरनल थर्ड। अभी तक हम ज्यादातर फोकस कर रहे थे मिडल और पाइकल थर्ड में बिकॉज ये ज्यादा कॉमनली है। कोरनल थर्ड में का फाइल सेपरेट होगी, सिंपल, यू आर यूजिंग ओरिफाइस ओपनर, वो डुप्लीकेट निकला है, फिर वो आपने इतनी बार यूज कर लिया और जैसे ही आप ओरिफाइस ओपनर को निकाल रहे हो तो वो सेपरेट हो गया और वो कैनाल को ब्लॉक कर गया।
बट उस केस में आप आराम से फाइल को देख लेते हो, मतलब यू कैन सी द सेपरेटेड फाइल, एंड एज यू नो इट इज सेपरेटेड एग्जैक्टली इन द कैनाल. You have a lot of good instruments, और after bypassing with a very small file, और उसको आपने अल्ट्रासोनिक से थोड़ा लूज कर दिया, तो यू कैन बाईपास इट आराम से. और वंस इट इज बाईपास, तो क्या होता है, जैसे जैसे बाईपास करते हो आप, सक्सेसफुल फाइलिंग करते हो, कभी कभी जब ये सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट लूज हो जाता है, और जब आप इरिगेट करते हो वो सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट निकल जाता है. ये एक सिनेरियो जिसमें आपने अच्छे से इरिगेशन करा, अच्छे से फाइलिंग करा, और वो लूज हो गया, और ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क इट केम आउट. एक ये तरीका है. और यू कैन बाय वन थिंग which I think everybody should buy, even a beginner: ultrasonic tips. We have special ultrasonic tips, at least ultrasonic tips. Now we have an instrument in which we can use multiple functions called Ultra X, जिसमें आपके पास इतने सारे फीचर्स है, फाइल रिट्रीवल से लेकर जीबी रिमूवल. अगर आप अपना क्लिनिक अपडेट करते हो तो दिस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इन सच टाइप ऑफ केसेस एंड प्री रूट कनाल केसेस. Otherwise, at least buy a tip, ultrasonic tip, which can be attached to your, I'll say, scaler also. तो अल्ट्रासोनिक टिप का क्या फायदा है, जैसे ही आपने फाइल को देखा, पहली चीज, यू कैन सी द फाइल एंड यू हैव क्रिएटेड अ स्पेस एडजेसेंट टू द फाइल. जस्ट इमेजिन. तो उस एरिया पे जब आप अल्ट्रासोनिक यूज करोगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस विल हेल्प इन डिसएंगेजिंग द फाइल. एक बार फाइल डिसएंगेज होगी ना, आपके इरिगेशन से फाइल को रिट्रीव हो जाएगी. तो कुछ नहीं करा हमने, नॉर्मल प्रोटोकॉल्स करे, अच्छा इरिगेशन करा, अच्छा वाइड प्रिपरेशन करा जो होना चाहिए, और फाइनली क्या करा, आपने अल्ट्रासोनिक यूज करा, उसको बार बार एजिटेट करा, और दूसरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा फाइल के पास से जाके, तो उसमें चांसेस ऑफ रिट्रीवल इज हाई. एंड ऑल्सो आई टेल यू, जब भी कोई बड़ी फाइल सेपरेट होती है, तो इफ यू बाईपास इट with 10 number files, सक्सेस फाइल्स जब हम करते हैं, वी कैन यूज एच फाइल ऑल्सो. जैसे कोई भी हमारी फाइल सेपरेट हुई, हम एच फाइल से उससे एंगेज कर सकते हैं उस फाइल को, जैसे हम जीपी रिट्रीव करते हैं एच फाइल से, वैसे ही इन सम केसेस वी कैन जस्ट एंगेज दैट फाइल, because already with lot of irrigation and widening the canal, the file has been loosened. तो उससे you can pull it up. तो these are the techniques which you can do at your clinics also. आप कुछ H file से हल्का सा engage करके उसको pull up कर दो. But always remember, whenever doing such type of procedure, जब आप pull out कर रहे हो ना, force excessive नहीं होनी चाहिए. अगर आपने एंगेज करा H फाइल से और आप पुल कर रहे हो और वो पुल नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा डिसएंगेज करो, फिर ट्राई करो पुल करने का, बिकॉज excessive engaging can again lead to further separation. So, guys, are you clear with the file retrieval, which I am just telling the simple steps of good irrigation, good filing, wider preparation, and ultrasonic if it is there. ठीक है. तो ऑलवेज मैं अभी भी यही चीज कह रहा हूँ कि यू शुड हैव लूप्स और माइक्रोस्कोप, बिकॉज वो चीज होगी ना, अगर लूप्स है तो चलेगा, माइक्रोस्कोप हो तो बहुत बढ़िया. तो उससे आप कभी भी किसी भी चीज को, फाइल जो सेपरेट हुई, अगर आप उसको देख पा रहे हो, तो आपको उसको बाईपास तो कर ही लोगे, और रिट्रीवल भी इजी हो जाता है. ठीक है. आर यू विद मी गाइस? आई जस्ट वांट टू सी योर एनर्जी. I want to see you commenting on that text box, so that I am sure enough that you are with me. Say hi to me and say you are with me. या ठीक है. ओके. तो रिट्रीवल का ये रहा. तो फंडा सेम ही है, जैसे यू कैन सी वेरी नाइसली हैज रिट्रीव. तो पहले क्या करा, एक्सप्लेन विद दिस डायग्राम. तो आपने जैसे ही आपने 10 नंबर फाइल स्लोली स्लोली कैच फील हुआ, धीरे धीरे पास करा, रेडियोग्राफ से कंफर्म करा, बीएमपी कंप्लीट करा, और कोपियसली इरिगेशन करा, तो क्या होगा, ये फाइल लूज तो हो जाएगी. उसको रिट्रीव करने के लिए फाइल के थ्रू यू कैन जस्ट एंगेज एच फाइल एंड देन इट कैन कम आउट, बिकॉज ये बहुत बड़ी है, इट कैन आराम से कम आउट. जितनी ज्यादा बड़ी फाइल उतना आसान से आ जाता है वो. ठीक है.
तो ये है। और जो छोटी फाइल फ्रैगमेंट्स हैं जो लूज हो जाती है आपकी रिपीटेड फाइलिंग और इरिगेशन से, वो आपके गुड इरिगेशन टेक्निक से इट कैन कम आउट. Lot of times when I use my U files in irrigation of the I'll say hypo or activation of the hypo or EDTA, lot of times the tips get separated, the irrigation tips. और जब पर वो इरिगेशन इतना अच्छा होता है वो टिप सेपरेट होके बाहर आ जाती है. तो सेम फंडा अप्लाइज हेयर ऑल्सो कि दिस कैन हैपन. तो always when you bypass irrigate well and if trying to retrieve with H file this can happen. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में बताऊंगा आपको. अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं फाइल को, और जाहिर सी बात है अगर आप चाहेंगे तो हो भी जाएगी, और पर एक छोटा सा टिप मैं दूंगा आपको कि जो टिप आप निकालोगे सेपरेट फाइल का, वो टिप कहीं और ना चले जाए. तो जब भी आप इसको रिट्रीव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत बड़ा फाइल का फ्रैगमेंट है, फॉर एग्जांपल छोटा फ्रैगमेंट होता जैसे कि ये वाला, ठीक है, जैसे छोटा फ्रैगमेंट होता, तो होता क्या है कि कभी कभी वो इतना लूज होता है और आप बार बार इरिगेट करे जा रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की, क्योंकि आपने निकालने की कोशिश करी, वो हल्का सा मूव हुआ, आधा आया, पर आपने अच्छा कोपियस इरिगेशन करा, वो थोड़ा ऊपर आया, फिर आपने फाइल डाली, फिर वो नीचे पुश हो गया. ऐसे करके 3-4 बार होगा. तो अल्टीमेटली जब वो बाहर आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा इरिगेशन करते हुए, और आप देखोगे कि कनाल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. बट यू विल बी क्लूलेस कि अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा, फाइल भी बहुत स्मूथली जा रही है, पर वो फाइल गई कहाँ. तो यू विल बी कंफ्यूज एंड यू विल थिंक कि मे बी सक्शन से सक हो गई, कुछ हो गया होगा. बट गाइज अगर ऐसा सिनेरियो होता है ना, अगेन स्टॉप योर ट्रीटमेंट एंड टेक अ रेडियोग्राफ. तो what happens when the file retrieval occurs by chance or with copious irrigation, it comes from here and it goes in the another canal, so no moment repeats. तो गाइज इसका क्या है, क्या ध्यान रखना है आपको कि जब भी फाइल रिट्रीवल पे फोकस कर रहे हो, जो और ओरिफाइसेस हैं उनको ब्लॉक कर दो, उनको से कवर कर दो. कैसे कवर करो? यू कैन यूज स्मॉल टेफ्लॉन प्लग्स आल्सो, और व्हाटएवर यू फील इज फाइन विद यू. So always remember, there have been many cases reported with such a, I'll say, experienced practitioners. They tend to do a lot of work in retrieval of the file, and they finally end up in a situation the file has gone to another canal. So guys, do you want this to happen? If you don't want this to happen, just text, write no in the text box so that I am sure enough you are listening कि हाँ जब फाइल रिट्रीव कर रहे हो दूसरे कैनाल्स को कवर कर दो, किसी भी चीज से कवर करो. आई प्रेफर टेफ्लॉन. तो जस्ट राइट नो, जस्ट राइट नो, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड कि हाँ यू डोंट वांट द फाइल्स टू गेट dislodged into another canal. I'm waiting for your replies, guys. तो मजा आ रहा है? Can you correlate with my stories, which I'm telling you what happens, what in and out you have to take care, और ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, it may take 1 or 2 sittings more, okay? और कुछ भी हो, you will finally reach the apex of the canal. You will definitely. And in few cases you can retrieve also. It all depends upon your passion, patience. ठीक है, तो ये फंडा आपको अप्लाई करना है. हाँ, तो वेयर वर वी वर, हाँ, तो की फॉर रिट्रीवल ऑफ फाइल, मैग्निफिकेशन हेल्प्स, ओके, लूप्स, माइक्रोस्कोप, ग्रेड. तो कोर्नल थर्ड में विजिबिलिटी बेटर है, बाईपास इजी है. तो कोर्नल थर्ड में आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन बाईपासिंग और सेपरेटिंग. ओनली सिर्फ मेहनत स्टार्टिंग में होगी, क्योंकि अगर वो ओरेफाइस ओपनर इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से एंगेज हो गया ओरेफाइस पे, तो फाइल प्लेस करना मुश्किल होगा. तो अल्ट्रासोनिक ही एक ऐसी चीज है जो लूज करेगा उसको. अल्ट्रासोनिक प्लेस इसमें तो शायद अगर आपकी स्केलर टिप भी हो वो भी उसको लूज कर देगा. अदरवाइज वी गेट लॉट ऑफ गुड अल्ट्रासोनिक टिप्स, ठीक है, एंड यू कैन मेक यूज ऑफ दैट ऑल्सो फॉर रिट्रीवल. नहीं तो as I told, you can just add one more inventory if you get lot of cases of file separation.
or you experience lot of file separation in your cases, तो you can use this instrument UltraX. बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, बाय 18 कंपनी 18, और ये इंस्ट्रूमेंट आपके इरिगेशन में भी हेल्प करेगा, एजिटेशन में, रिट्रीवल ऑफ जीपी में भी हेल्प करेगा, और इन फ्यू केसेस फाइल रिट्रीवल में हेल्प करेगा, ओनली इन द फॉर्म ऑफ when it will agitate the irrigant solution, or it will create a swirling motion in anti-clockwise direction. Always remember, swirling motion in anti-clockwise direction. तो टेंडेंसी होगी उसको बाहर आने की, तो लूज कर दिया उसने पहले, और फिर आपने इरिगेट करा, फाइल बाहर आ गई, और आपने आप ध्यान रखा, सारी और फाइल क्लोज करी, और फाइल दूसरे काम में नहीं गई। ठीक है, तो आई थिंक यू आर विद मी गाइस। तो अल्ट्रा एक्स और के 400 का फोटो आई विल शो यू टुमारो, सो दैट एटलीस्ट जो आर्मामेंटेरियम, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आरटी फाइल्स बाय मनी। ठीक है, आई डिडंट ऐड इन द फोटोज, टुमारो व्हेन विल बी डूइंग अ सेशन आई विल शो इन दैट। सो ओके ग्रेट, अरे वाह, डॉक्टर देवेश, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर दीप्ति, great. I just saw your message, you wrote no. So finally it is clear कि हाँ, you bypass the file, and if you go for retrieval you will not dislodge the file into another. ठीक है, तो very 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 important, if performing procedures, what I told you, always cover the adjacent orifice. Why? Because oh, no movement can come again. तो अब कोरोनल थर्ड का तो हमने देख लिया, अभी तो हम बाईपास की बात कर रहे थे ना। अब हमने बाईपास करा, कोरोनल थर्ड का रिट्रीव भी करा, मिडिल थर्ड में हमें रिट्रीव करनी है। फंडा सारा सेम ही है, स्ट्रेट लाइन एसेस बनाया, स्ट्रेट लाइन कैसे बनाया वो आपने अभी देखा डायग्राम में। ठीक है, एक स्ट्रेट वो बनाया, इसको बाईपास करा, और वो करने के बाद आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू डिड, यू यूज अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रा एक्स, ठीक है, या फिर एच फाइल यूज करी, और कोपियस इरिगेशन करा, क्रोपियस इरिगेशन करा। देखो एच फाइल का यूज बहुत ट्रिकी है, बिकॉज इट इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली, एच फाइल का ये यूज है नहीं, बट हाँ फ्यू केसेस हैव बीन परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट इट हैज हेल्प्ड इन रिट्रीवल। ओके, तो आई ऑलवेज प्रेफर कि नॉट टू यूज, बिकॉज इफ यू आर नॉट गुड इनफ इन यूजिंग दिस फाइल्स, टेंडेंसी है कि वो भी सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो बेटर है कि इरिगेशन और अल्ट्रासोनिक पे फोकस करो। तो रिमेंबर गाइज, फाइल sometimes separates in pulling out motion, so can at times loosely present in the canal। मतलब कि जैसे हमने फाइलिंग करी, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो फाइल को, और जब आप पुल कर रहे हो वो एंगेज हो चुकी है और आपकी फाइल सेपरेट होगी। कभी कभी क्या होता है, जब वो फाइल बेसिकली कैनाल से जस्ट आप निकाल रहे हो, जैसे कि आपने वॉच पेंडिंग मोशन करा या फिर क्लॉकवाइज फुल मोशन करा, जैसे आप फाइल कैनाल से निकाल रहे हो, दैट इज रिमूव कर रहे हो, तभी क्या हुआ, वो जस्ट सेपरेट हो गई, तो इट मे बी लूजली प्रेजेंट। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज इन सच टाइप ऑफ केसेस it will be very easy to bypass, and very easily the irrigation process can allow the file to come, but again remember to cover the orifice। Okay, so always remember guys, bypassing the file is the key to manage such type of cases। क्यों? देखो, अगर आपको फाइल रिट्रीव करना है तब भी बाईपास करना है, और केस का सक्सेस चाहिए तो भी बाईपास करना है, तो बाईपासिंग अगर आपने सीख ली वो मोर देन इनफ है। हाँ, if you want to go out of the normal people, you want to do good, you want to show your cases with file retrieval, you can try these techniques, and a lot of other techniques are there। Every 6 months or 1 year I find a new instrument for file retrieval। Okay, some people modify their normal syringes also for file retrieval, so a lot of things are there, but my focus is just for the general dentist or fresh or initial practitioners who find such difficulty while doing cases, and they should know how to manage it। So फंडा एक ही है, फाइल को बाईपास करा और कोपियस इरिगेशन करा, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है बीएमपी का कि कंप्लीट डीब्राइडमेंट ऑफ द कैनाल फ्रॉम ऑल द डेब्रीज, बैक्टीरिया, डेड पल्प, नेक्रोटिक पल्प, एंड ऑल द डेब्रीज, द इन्फेक्टेड टेंटिन एंड ऑल। ठीक है, तो अब क्योंकि हम क्लिनिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो अगर अब ये अच्छी अच्छी सिचुएशन थी, एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड, you are able to bypass, you are able to retrieve, or you're just able to bypass and obsolete, okay done,
case closed. But somehow a situation occurs that due to any reason you are not able to bypass or retrieve the file. तो उसके बाद क्या करने का है, उस पे भी सिंपल सा फंडा है. यू हैव टू फर्स्ट स्पीक टू योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ कि वो जो फाइल सेपरेट हुई है कहाँ सेपरेट हुई है. पहली बात, अपाइकल थर्ड में वो रेडियोग्राफ से पता चल जाएगा. और कब सेपरेट हुई है, इनिशियल फाइलिंग में या फिर आफ्टर बीएमपी. सो सिचुएशन नंबर 1, इफ यू हैव डन द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटेशन, दैट इज बीएमपी कंप्लीट करा, और लास्ट फाइल जब आप यूज कर रहे थे तब वो सेपरेट हो गई कैनाल में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज लेस. तो मतलब आपने बीएमपी अच्छे से करी और आप श्योर अनफ हो कि आप इरिगेशन बहुत अच्छा करते हो कैनाल का, तो और तब आपकी सेपरेट हुई और अच्छे खासी एंगेज हो गई और आप बाईपास नहीं कर पाए किसी वजह से. तो गाइस, इन दिस सिनेरियो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि आपने जो मेन मोटिव है रूट कैनाल का, डिब्राइटमेंट पूरा कर दिया है. अब ऑब्जर्वेशन जो जीपी से होना था वो आपकी फाइल से हो गया, बस अपाइकल थर्ड में यही फर्क हुआ है. पर आपने डिब्राइट पूरा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. बिंदास ऑब्जेक्ट द टूथ, सेंड द पेशेंट एंड डू अ गुड फॉलो अप, नथिंग हैपन, आई एम श्योर एनफ. ठीक है. अब दूसरा सिचुएशन हुआ कि इफ द सेपरेशन अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अपाइकल थर्ड. अब क्या हुआ, फिर से अपाइकल थर्ड में सेपरेशन हुआ, क्योंकि अपाइकल थर्ड ऐसी सिचुएशन है जहां डिफिकल्टी पा सकते हो कि बाईपास नहीं हो रहा. क्यों? जैसे कर्वेचर पे हो गया अपाइकल थर्ड पे, ठीक है, या अपाइकल थर्ड पे बहुत स्ट्रांगली एंगेज हो गया, या फिर अपाइकल थर्ड पे ऐसे एंगेज हुआ कि हाफ ऑफ द फाइल इज आउटसाइड द कैनाल, half of the file is inside the canal. This is also a scenario. I'll tell you how to manage. Don't worry. तो इसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अपाइकल थर्ड में फाइल सेपरेट हो गया, ठीक है, और आप बाईपास नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, ठीक है. और एक और चीज है, और वो वाइटल डूबता है या फिर पल्प वाला डूबता है, तो फिर भी द प्रोग्नोसिस इज गुड. पर हाँ, अगर वो नेक्रोटिक है, पैरापैगिक पैथोलॉजी है, तो प्रोग्नोसिस थोड़ा पुअर हो जाता है. मगर उसको अगर आप चाहते हो कि वो केस फेल ना हो और आप ही उसको कंप्लीट करो और आप बाईपास नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सा फंडा है, इरिगेट 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 इरिगेट. फाइल, पुट फाइल वंस इन द कैनाल, इरिगेट 3 टाइम्स. तो उससे क्या होगा, आपका फाइल तो नहीं पहुंच पाया अपाइकल थर्ड तक, पेटेंसी कर पाया, मगर आपको जो इरिगेटिंग सोल्यूशन है दैट इज 5% हाइपोक्लोराइड, इट विल रीच, बिकॉज द लिक्विड विल गेट अ पाथ टू गो एडजेसेंट टू द फाइल which has been separated and touch the canals in the file itself and help in at least disinfecting the canal. Because in most of the cases, if you do a good disinfection procedure, that is good irrigation procedure, the bacteria won't grow again, because they are, those bacteria which were loaded with a lot of bulk of bacteria have been reduced. तो बॉडी का भी तो काम है रिपेयर करने का, बॉडी को सिर्फ को हमें एक हेल्प करना है कि बैक्टीरिया का लोड कम से कम करना है, जैसे बॉडी हील कर जाए. तो सिंपल सा फंडा है ऐसे सिचुएशन में, अगर आपकी फाइल सेपरेट हुई इनिशियल फाइलिंग में भी, वो भी अपाइकल थर्ड में, फोकस ऑन इरिगेशन. तो उससे क्या होगा, आपका इरिगेटिंग सॉल्यूशन तो चले जाएगा ना, इरिगेटिंग सॉल्यूशन चले जाएगा तो प्रोग्नोसिस पुअर नहीं होगा, बेटर होगा मतलब, ठीक है. इट विल बी ओके. एंड ऑलवेज फॉलो अप सच टाइप ऑफ केसेस एवरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, ठीक है, टू सी वेदर पेरिपेगल चेंजेस इज अकरिंग, या पुराना पैथोलॉजी है और वो उतना ही है, या फिर पुराना पैथोलॉजी नहीं है अब हो गया, या फिर पुराना पैथोलॉजी था और अब वो हील हो रहा है, ठीक है. ये सारी चीजें देखनी है. तो as irrigation has the ability to flow in the untouched portion of the canals. Now, if the file was separated in the middle third, ठीक है, अब ये थर्ड सिनेरियो है. पहला सिनेरियो में आपने बीएमपी करने के बाद फाइल सेपरेट करी, कोई दिक्कत नहीं, मत करो बाईपास, कोई टेंशन नहीं, अच्छे से आप ऑब्जर्वेट कर दो. सेकंड सिनेरियो है, आपकी इनिशियल फाइलिंग में सेपरेट हो गई, बट आपने इरिगेशन इतना अच्छा करा तो यू टेंड टू मैनेज समहाउ, ठीक है, मतलब बेस्ट नहीं होगा पर ओके होगा. But now third situation is there कि file was separated in the middle third and you were bypassing but you couldn't bypass. So guys, now don't do any hero-dontics. Just call outsource a endodontist or any doctor who can bypass this file. Take help of him. He will do the bypass. He'll come to your clinic and then you can follow the procedure. Okay. मिडिल थर्ड में अगर आपसे बाईपास नहीं हो रही तो कैनाल को नहीं छोड़ने का उसको कैनाल में, ठीक है. Call somebody else, okay, who can do. Lot of endodontists are
willing to do such type of cases. Okay, तो आउटसोर्स करो गाइस, ठीक है, खुद करने की जरूरत नहीं, आउटसोर्स लो, किसी एसोसिएट डेंटिस्ट की हेल्प लो या फिर एंडोडोंटिस्ट की हेल्प लो. नाउ यू कैन सी दिस केस, इट्स अ वेरी गुड केस. यू कैन सी फाइलिंग भी हुआ और फाइल पेरियपाई के लिए चले गए. यू कैन सी अब ये आपके साथ ऐसा होगा, यू विल बी इन अ नाइटमेयर नॉट फॉर वन डे, टिल द टाइम द पेशेंट इज फ्री ऑफ पेन. और फ्री ऑफ पेन होने के बाद भी जब उसका फॉलोअप टाइम आना होगा, जैसे 3 या 6 महीने बाद, आपको डर लग रहा होगा अंदर ही अंदर की फाइल सेपरेट हो गया था, पेरियपाई के लिए क्या होगा क्या होगा क्या होगा. ये चीज चल रहेगा. कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपने कैनाल के अंदर सारे बैक्टीरिया हटा दिए बॉस, क्योंकि आपने बीएमपी पूरी कर दी. और आपको भी पता है जो भी आप मेडिसिन देते हो कैनाल के अंदर तो जाती नहीं है. तो कैनाल के अंदर तो सिर्फ आपका हाइपो जाता है जो उसको इरिगेट करके क्लीन करेगा. तो आपका काम सिंपल है, आप सिर्फ इरिगेट करोगे अच्छे से, बीएमपी करके ऑब्चुरेट करोगे एपेक्स तक. इसको कुछ नहीं करने का है, उसको छोड़ दो. ठीक है, इम्प्लांट भी तो डलता है, वो भी तो मेटल ही होता है. ठीक है, तो ये मानो कि एक फॉरेन बॉडी चली गई, मेटल है, पर बॉडी अडेप्ट कर लेगी. अडेप्ट कर लेगी क्योंकि ये एक वाइटल टिश्यू है बोन, और उसमें जो भी आप ड्रग्स देते हो या फिर बॉडी का टेंडेंसी ऑफ हीलिंग इज मच हायर. ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी स्पेशल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी, यू कैन लीव इट. तो ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी, हाफ ऑफ द फाइल कैनाल के अंदर होती, हाफ ऑफ द कैनाल कैनाल के बाहर होती, तो भी टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि वो कैनाल के अंदर 1-2 मिलीमीटर ही होगी, बाहर भी 1-2 मिलीमीटर होगी. तो फंडा सिंपल है, अगर आप ज्यादा पुश करोगे तो बियॉन्ड चले जाएगी, रिट्रीवल थोड़ा मुश्किल है, बाईपास हो गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इरिगेशन जिंदाबाद. तो इरिगेशन जिंदाबाद इज नॉट जस्ट बाय योर सिरिंज नॉर्मल, इट इज विद लाइव बेंड syringes, and very important, the best irrigation is only when you agitate it. कभी भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो, उसमें सर्फ डाल के कपड़े डाल देते हो क्या, उसको रोटेट करना पड़ता है ना, उसको एजिटेट करना पड़ता है ना. वेरी सिमिलरली व्हेन यू डू इरिगेशन, यू जस्ट डोंट हैव टू पुट द इरिगेशन इन द कैनाल एंड एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन. तो अगर पावरफुल इरिगेशन करना है तो इरिगेशन को एजिटेट करने का है, विद अल्ट्रासोनिक्स और लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल. ठीक है, एंडो एक्टिवेटर है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास अपनी हैंड फाइल है, उससे भी एक्टिवेट कर सकते हो, आप उससे भी एजिटेट कर सकते हो. तो उसका फंडा सिंपल है, एफिकेसी ऑफ इरिगेंट सॉल्यूशन इंक्रीजेस. ठीक है, पोटेंसी इंक्रीजेस, और जो काम आप मतलब 40-45 मिनट्स में उसका इफेक्टिवनेस लाते हैं हाइपो का, वो विद इन 5 मिनट्स हो जाता है. 40-45 मिनट्स हाइपो से इरिगेट करने का है, पर लास्ट में फाइनल स्टेप ये भी करने का, एजिटेशन. आई in cases where the lot of periapical infection is there, I do in between, when I feel the canals have been wide enough, I do in between this type of irrigation, agitate the hypo. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल वे में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू गाइज. एंड अगेन आई विल सी इन द चैट बॉक्स कि इज देयर एनी डाउट, और आर यू विद मी गाइज? आई वांट टू सी यू writing yes in the chat box so that I'm aware that you are with me. तो ये जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, these are the very common things. और किसी के साथ फर्स्ट केस में अभी लॉकडाउन के बाद आप जब स्टार्ट करोगे तब भी हो सकता है, और मे बी आफ्टर 1 year 2 year भी हो सकता है, बट सिंपल सा फंडा है, बाईपास करो, सिंपल. आई एम वेटिंग गाइस फॉर कमेंटिंग in the comment box. I am waiting. In the meantime, I'll drink some water. Okay, I can see the energy of you guys. Great guys, you are very nicely understanding this topic, because थोड़ा सा वो है ना कि we are just
verbally talking to each other. अगर मेरे हाथ में एक टूथ और फाइल होती और सेपरेटेड होती, आई वुड हैव यूज्ड गिवन यू अ लाइव डेमो. ठीक है. एनीवेज कोई बात नहीं, दैट आल्सो कम. आई विल डू अ वीडियो सेशन विद लाइव डेमो ऑफ बाईपासिंग अ फाइल. ओके, डोंट वरी. तो you can see such type of cases are also in a verge of success. So anything is possible. Okay, just follow the basic protocols which I'm telling you. Now, last step, last stage. For example, if separated file in the apical third, ठीक है, अब आपने अपाइकल थर्ड में छोड़ दिया फाइल को, मतलब वो रिट्रीव तो हो ही नहीं पाया, जाहिर सी बात है, और बाईपास भी नहीं हो पाया था, और एक नया पेरीपाइकल लेजन या नॉन हीलिंग लेजन आ गया, मतलब या फिर पेरीपाइकल लेजन था, आपने 6 महीने और साल भर बाद रिपीटेड रेडियोग्राफ लिया और वो हील नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपने 2 साल तक फॉलो करा, 2 पेशेंट को बीच बीच में पेन हुआ नहीं हुआ, इट में वेरी, बट अब लेजन भी नहीं हुआ, पेशेंट को सिम्टम्स भी आ गए, और या फिर एक नया लेजन बन गया, दैट मीन्स आपका डिब्राइटमेंट नहीं है पूरा, वहां जो बैक्टीरियाज थे वो रह गए, और बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हो के पेरियपाइकली एक पैथोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटेडली बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पेरियपाइकल पैथोलॉजी होगी. तो उस केस में यू कैन गो विद अ सर्जिकल ट्रीटमेंट विद एपेक्सेक्टमी ऑफ द रूट टिप, क्योंकि now you can't bypass it. ठीक है. No, again and again you should not drill the tooth again and again just because again you have to try for bypassing or retrieving तो possible बड़ा मुश्किल है, तो you just can go for a apicectomy procedure in this type of cases. ठीक है. देखो मेरा मोटिव सिंपल है सारे रूट कैनाल केसेस में, ट्राई टू सेव द टूथ, मिसहैप हो गया उसको बाईपास करो, हो सके तो रिट्रीव करो, ना हो सके तो सिर्फ बाईपास काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन करो, दैट्स इट, पर दांत को एक्सट्रैक्ट मत करो. अगर फिर भी पैथोलॉजी बन रही है, डोंट एक्सट्रैक्ट द टूथ, एक्सट्रैक्ट द अपाइकल 1/3 ऑफ द रूट, दैट्स इट, सिंपल. ठीक है. So many options are present to save the tooth. Many good outsourced doctors will be there to help you out. So don't go for extractions, guys. अपनी चीजों को छुपा के नहीं रखने का है. कोशिश करो कि उसको बचाओ और वो चीज करो. One more clinical tip I'll give you. ठीक है. It may be applicable in few patients. ठीक है. Few patients में आप अप्लाई करना जरूर. फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपको दिख रहा है फाइल काफी क्लियरली दिख रही है, तो आपको क्या करने का है, एक ये डेंटल एथिक्स में आता है ये शब्द, इन्फॉर्मिंग द पेशेंट. अब जैसे आपने फाइल सेपरेट हो गया, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से एविडेंट भी है रेडियोग्राफ में, तो क्या होगा, अभी पेशेंट यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल ही शिफ्टेड समवेयर एल्स, और फॉर एग्जाम्पल ही विजिटेड योर क्लिनिक, यू आर नॉट देयर, यू आर इन वेकेशन, तो पेशेंट किसी और क्लिनिक में चले गया, और जस्ट एज अ डायग्नोस्टिक कभी रेडियोग्राफ लिया और वहां फाइल सेपरेट देखी, तो somehow everybody is not giving complimenting the other dentist, so they may tell कि हाँ there is a separation of the instrument. तो always मतलब you should be so skillful in your interpersonal skills, मतलब आप जो अपना मैसेज सामने वाले को कन्वे करते हो, कि आप ये भी बता दो सामने वाले को कि सर एक फाइल इंस्ट्रूमेंट सेपरेटेड है कैनाल में, और इसको अच्छे से एश्योर भी कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आई एम देयर, डोंट वरी. ठीक है. तो यू शुड हैव सो स्ट्रॉन्ग स्किल्स. ओके. तो इन आवर डेंटिस्ट्री लॉट ऑफ प्रोसीजर्स आर देयर इन व्हिच पेशेंट्स हैव पेन, लॉट ऑफ symptoms post operative or such mishaps occurs. So if you are sure enough, or you are sure enough with your procedure, and you are sure enough you can manage the case somehow, if something happens later also, you should be strong enough to assure the patient कि ऐसा हुआ है, घबराने की बात नहीं, बहुत कॉमन प्रोसीजर है. दो तीन शब्द you can tell it's a common procedure, because when we use any instrument the tendency to separate is there, but you don't have to worry, I have done everything, it is there. फिर you can give an example कि जब चोट लगती है किसी को, प्लेटिंग होती है, तो बोन प्लेट्स भी डाल देते हैं, ये तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर. ठीक है. एंड यू विल कम फॉर द फॉलो, और ये मत बोलो बाद में कोई दिक्कत होगी, उनको बोलना कि यू विल बी कमिंग फॉर द फॉलो अप रेगुलरली, एंड आई विल जस्ट चेकिंग द केस रेगुलरली एज माय अदर पेशेंट्स, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. तो मतलब उसको आपने एथिकली बता भी दिया, एश्योर भी कर दिया, और आपको भी ये रहेगा कि फ्यूचर में कभी वो पेशेंट कहीं और जा गया तो कोई और आपको कुछ बोलेगा तो वो बोल देगा कि हाँ डॉक्टर ने मेरे को बोला था. तो दैट फेथ द पेशेंट विल हैव ऑन यू ना, दैट विल बी आउट ऑफ द ब्लू. इट विल बी लाइक
ऑन क्लाउड 9। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्किल्स डेवलप करने का, इसलिए यू रिमेंबर ऑलवेज व्हेन आई एंड अप माय सेशन, ऑलवेज गिव अ क्लिनिकल टिप कि पेशेंट से कनेक्शन होना चाहिए, वो कंफर्टेबल फील होना चाहिए, आपके प्रोसीजर होने से पहले ही वो आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब यू शुड हैव टेकन द बिलीव ऑफ द पेशेंट, ओके, यू शुड हैव, द पेशेंट शुड हैव 100% बिलीव इन यू, क्योंकि ट्रीटमेंट करने से पहले बिलीव चाहिए, जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो, और साथ में आपकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए पेशेंट से, सो दैट आप कुछ भी कहते हो, ही बिलीव्स इन यू, एंड व्हेन ही बिलीव्स इन यू, कोई भी मिसहैप होता है आप उसको मैनेज कर सकते हो जस्ट बाय योर interpersonal skills. These sessions I'll take in my practice management sessions. Always I give a small tip how to manage such type of cases. ठीक है? Are you with me, guys? Are you enjoying this session? And did you feel you learned something from this session, from these two sessions which I'm trying to explain you? I just want your comments in the comment box, especially Dr. Devesh. The topic of file session was specially was dedicated to the interns and practitioners, and especially to you, Dr. Devesh. तो ये मैं चीजें टॉपिक कवर करता हूँ, जो आप जो भी स्टार्टर्स हैं प्रैक्टिस में, या फिर अभी फ्रेशर हैं, इंटर्न्स हैं, या फिर एक दो तीन साल हुए प्रैक्टिस में, तो ये छोटे छोटे मिसहैप्स होते हैं, तो माय फोकस, माय प्राइम ऑडियंस आर दे पीपल, इनको 3 साल से ऊपर हो जाते हैं, फिर उनके हिसाब से दे नो एवरीथिंग, तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन पीपल हु वांट टू लर्न एंड हु फील दैट अभी दे हैव टू लर्न मच, आई फेल्ट जनरली साल बाद वी ऑल कंसिडर दैट वी नो एवरीथिंग। Always I like to teach people who are enthusiastic and want to learn more. Great. I can see the energy, guys. Thank you, Dr. Devashis, for the compliments. ठीक है, तो guys, so this is a journey, and one more thing, I always want to end my session with a very positive note. ठीक है, learning is a process, we learn from our mistakes, and upcoming from our mistakes is the one who upcomes from his mistakes is the real hero, always remember. तो कोई लर्निंग प्रोसेस है, मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, कितने भी बड़े हो, आप किसी की भी हिस्ट्री देख लो, जो आज की डेट में इंडिया के वर्ल्ड का एंडोडोंटिस्ट है, उसने भी अपने इनिशियल केसेस में फाइल सेपरेट करी है, वो क्या अभी भी फाइल सेपरेट, अभी भी मिसहैप करता है, अभी भी परफोरेशन मतलब करी होंगी उसने अपने पास्ट में, तो लर्निंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, and it is a never ending process, I'll tell, and we learn from our mistakes, and those who upcome their mistakes is the hero, and you all are hero, and you just have to be the hero within yourself. तो ये जो स्लाइड है ना, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्लाइड ना, everybody is a hero and anyone can do anything, they can reach any heights. जिसको फाइल डालने में भी डर लगता था ना कैनाल में, वो भी 1 साल बाद ऐसा हो सकता है कि he can do magical root canals, ठीक है, but you have to find that hero within yourself, you have to love yourself, I always tell love yourself, ठीक है, तो guys, finally believe in yourself, you are the best, you can do it, and remember Nike, and he says just कहते हैं ना सर, हर कोई पूछता है सर फाइल बाईपास कैसे होगा, सर फाइल बाईपास कैसे होगा, क्या करूं, आई टेल ऑल द टेक्निक्स, आई राइट, देन आई पुट अ ऑडियो नोट आल्सो, पर वो तब भी पूछते हैं सर कैसे होगा, मेरा एक ही जवाब है भाई, करने से होगा, जस्ट डू इट, जब आप करोगे तभी तो होगा, आप सिर्फ सोचते रहोगे या डरोगे कि कैसे होगा तो कभी नहीं होगा, अगर करोगे तो डेफिनेटली होगा, एक सिटिंग में नहीं होगा, 2 सिटिंग में नहीं होगा, तीसरी सिटिंग में डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो always believe in yourself, and whenever you are doing such type of process, you are not confident enough, you are in a very little fear situation, always say these words, I am the best, I can do it, and just do it, guys. So after this ultra powerful session, I always tell, we are ending this session, and guys, hope you enjoyed it, and your energy is always high when I start my sessions with different problems, topics, and this energy which you show me, it gives me a motivation
टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी. तो बोलता है ना टीचर कि अगर जो सुनने वाला, जो भी लिसनर है या ऑडियंस है, अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे ना, तो जो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है उसको मजा आता है और वो अपना बेस्ट निकालता है, क्योंकि नॉलेज हर किसी को है, पर हाउ वी कन्वे द नॉलेज इज द मेन की. In this good lines, I would like to end my session. Okay, guys, bye bye. Take care. Have a great sleep and wake up early. Bye bye.